One, we are live now. Welcome all the students and the faculty members. So today we have a very famous personality with us. So I'll just hold on to my excitement for next 2-3 minutes before I introduce the guest speaker. So we have around 35 students who have already joined in. So we'll wait for another 1 minute or so. So let all the participants, all the attendees can join in. They'll be finishing up with their first lecture at 10:30. I suppose the first lecture is already over. And now they'll be shifting on to this Zoom webinar ID in next 2-3 minutes. We have around 45 students now. So I suppose we can start with the session once we achieve our 100 mark, as always. Once 100 students have joined in, then we can start with our session. So we have around 50 students now. So we have a very famous personality as well as I was saying today with us, Dr. Anita Sharma. So I'll just wait for another 50 students to join in. I don't want anybody to miss the introduction part. So Dr. Anita Sharma is with us today, and we are very thankful to Dr. Anita Sharma ma'am for joining us today and guiding our students. So 60 participants have joined in. So we'll wait for another 40 students to join. It's 10:33. So I suppose by 10:35 we can start up with the session. Ma'am, me and Kaval are quite excited, really, because yeah, because we are following you on LinkedIn and Facebook as well. फेसबुक पे तो आई कीप ऑन शेयरिंग बट डेफिनेटली लिंक्डइन पे मैं बहुत कम शेयर करती हूँ. आई थिंक मुझे और भी ज्यादा शेयर करना चाहिए. ये इतनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से आपको ये आभास हुआ और क्यों लग रहा है आपको ऐसा. ये एक गलत डेवलप कर चुके हो. No ma'am, it's your humility. No, you are so humble. नहीं, So we have around now 60 students. ठीक है, अब वेट कर रहे हैं 100 का मार्क वेट कर रहे हैं हम. And 65 students have already joined in. So we will wait for another 1 minute or so. Meantime, I'll I'll just introduce the guest also to you. For formal introduction, I would invite Dr. Anu Sai, but students already joined in. So we have Dr. Anita Sharma with us, the co-founder of Inkpot Hub and the founder of Drive on My Own. And she is an entrepreneur, academician, researcher, YouTuber, reader, traveler, and much more. So Dr. Anu Sai would be briefing us. Shall I? Ma'am, just wait for 1 more minute, and let the mark be. 75 students have joined in, so only 25 students. Let 25 students come in, so okay, we'll start. Ma'am, I hope you can wait for 1 more minute. Just 1 minute, I suppose. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अनु मैम बोलेंगे मैं वैसे ही करूंगी. थैंक यू मैम. मैं ऐसे भी बैठ सकती हूँ पूरे 45 मिनट, मुझे अच्छा लग रहा है देख के सबको. Today is our 18th virtual expert talk. So in this series of skill and enhancement classes, we have around 17 expert talks till now. And I suppose all the students must be gaining a lot from these guest
talks and speeches that we have held in last few days, as evident from the messages that we have been getting from the students on the LinkedIn as well as on the WhatsApp, that they are enjoying these sessions. And today's session would also be a great session. काश मैं 18 बाकी 17 में ज्वाइन कर पाती. आपका कोई YouTube चैनल है इसके ऊपर जहाँ पे आप ये पोस्ट करते हो? Maybe I can go and we have a look at YouTube it. channel, and we have just posted the previous seminar only. So we'll be posting all the seminars by within 1 to 3 days, all the 17 seminars on that particular channel. So I would share the link also. I'll go and watch. Right. Ma'am, we have not uploaded yet all the seminars. Yeah, तो आप जब भी uploaded only upload one करेंगे. हाँ जी. So we have just uploaded one. So we will be uploading in due course of time, and then we will let you know. Sure, certainly. I suppose, Dr. Anu, we can start up with the session because 84 students have joined in. Right, so right. Yes, we'll be finishing the. Meantime, you will be finished with the introduction part. So I suppose all the 100 students would join in. So we should start, ma'am. Right. Thank you, Kaval. It's indeed my privilege and honor to invite and introduce Dr. Anita Sharma, Speaker of the Day, to the audience. Dr. Anita Sharma is popularly known as Girl on Four Wheels. She's an entrepreneur by passion, academician by choice, and researcher by compulsion. A fellow of IIM Indore and India Inclusion Summit Bangalore. Her work in the disability space is exemplary. She quit her IIM professor job to run her own companies. Her first company is On My Own. It is a mobility solution provider platform for people with reduced mobility. She trained people with locomotive disabilities to drive cars, help them modify cars, and work towards the independence of people with locomotive disabilities. Her second company is Inkpot Hub. It enriches and celebrates the journey of researchers. Her work is featured by Femina, The Business Standard, Outlook, The Tribune, and many other news channels. She is a recipient of highly recognized Positive Health Award 2019, which included rupees 1 lakh prize money by Dr. Batra's Foundation for her extraordinary work in disability sector. If I keep on sharing her profile, it might take the entire session. So I would just be summing it up like she's a vivid reader, a lone traveler, and a YouTube. Ma'am, I, on behalf of APJ Institute of Management and Engineering, welcomes you, ma'am. It is really an honor for us to be you with us. And now the stage, the entire floor is for you, ma'am. You kindly can start now. Thank you so very much. Thank you, Anu ma'am, and I'm really happy to be a part of this series wherein I'm the 18th speaker, and I'm very much, I'm happy and glad to be a part of this. Thank you, Kaval sir, and very happy to see you. I think we became friends on LinkedIn, because we can say friends on LinkedIn means that we know each other more than just a network or a LinkedIn connect. So here, so I will begin with certain things. लेकिन आज हिंदी दिवस है 14 सितंबर, तो मैं मोस्टली अपनी जो कॉन्वर्सेशन है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स रखूंगी और सिर्फ इंग्लिश में मैं बात नहीं करूंगी. So मुझे ऐसे लगता है कि मैं अपने दिल की बात बहुत ज़्यादा अच्छे से तब कर सकती हूँ जब मैं स्टूडेंट्स के साथ में अपनी उस लैंग्वेज के अंदर मैं कम्युनिकेट करूँ जिसके अंदर मैं भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ. ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है. इट्स जस्ट दैट कि आज का ऐसा दिन है जो अनु मैम ने चूज किया है मेरे लिए, तो मैं उस एटलीस्ट उस दिन को मैं रिस्पेक्ट जरूर कर सकती हूँ. सो काफी एक्चुअली मेरे लिए ये है ना, ये वाला जो माहौल है ये बड़ा डिफरेंट है, और सब स्टूडेंट्स के फेसेस की बजाय मुझे उनकी आईडीज दिखाई दे रही हैं. और अभी ये जो न्यू नॉर्मल है जिसके ऊपर हम आज बात करेंगे, तो एक न्यू नॉर्मल में सबसे बड़ा एडजस्टमेंट जो फैकल्टीज को करना है और जो अकेडमिशियंस को करना है वो ये है कि हम आईडीज के साथ में बात कर रहे हैं. आई स्टिल मिस दोज क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लासरूम डिस्कशंस, और ये सारी चीज़ें मैं बहुत मिस करती हूँ. आई सपोज आप सब लोग भी बहुत मिस करते होंगे वो क्लासरूम्स में जाना.
मैं अब स्टार्ट करती हूँ, मैं शेयर करूंगी अपनी पीपीटी यहाँ पे आप सबके साथ में, आप मुझे बताइएगा if you are able to. Sorry, ma'am, I am interrupting in between. Our director, honorable director, sir, has joined us, Dr. Rajesh Bagga. We welcome you, sir. Thank you so much, Dr. Anu. Thank you so much, Dr. Anita, for joining with us at a very short notice. I think you have joined, and we are really thankful from heartfelt thank you and welcome to our campus. But definitely, we would love to have you in our campus once the normal will be there. Meantime, this is, I think, the 18th expert talk, and definitely we are lucky. We are having a person of your stature at our Zoom platform to interact with our students. Thank you so much, ma'am, for joining. Thank you so much, Rajesh sir. It is indeed a pleasure to see you. And I'm honored actually to be a part of this journey of your induction program and Zoom calls. Anu ma'am is really an amazing person जिनसे I've been interacting a lot. और उन्होंने जब मुझे बोला मुझे आना है तो मैंने second thought ही नहीं दिया. मुझे लगता था कि मैं अनु मैम ने बोला है तो I will be there. So that kind of feeling I have for her through, I don't know how it happened, but it is really important for me to, and I'm very happy to be a part of it. So मैं शुरू करूँ अपना conversation बच्चों के साथ? Sure, ma'am. Sure. Thank you so much. हाँ, ठीक है. So I am sharing my PPT. I guess आपको दिखाई दे रहा है? Just give me a thumbs up for that. Great. Is it visible? So आज मंडे है, मंडे ब्लूज बहुत सारे लोगों को होता है, मुझे इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को आज इस टॉक के लिए आना था. And I am feeling very excited and very happy. All the students, I guess more than 100 students or close to 100 students are already here. And yeah, so Monday Blues के साथ में हम चलते हैं आज के 10 साल पहले. ये 2011 की बात है जहाँ पे मेरी अपनी जिंदगी चालू हुई थी. अब मैं आपको धीरे धीरे इस पूरी कॉन्वर्सेशन में यू विल गेट टू नो दैट व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स. एंड ये न्यू नॉर्मल को हम एड्रेस करेंगे बाद में, लेकिन हम अभी ये देखते हैं कि मेरे साथ में आज अनु मैम ने मेरे को जो इंट्रोड्यूस किया है वो क्यों ऐसा इंट्रोड्यूस किया है, मुझे ये थोड़ा उसका बैकग्राउंड बताना जरूरी है. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू हर दैट शी इंट्रोड्यूस मी द वे she sees me. Otherwise I have not done anything great over here. The only thing is like the moment I share my journey with you all, then only you will be able to understand that what were those things in last 10 years happened with me. And then मैं अभी अपने घर पे बैठी हुई हूँ और यही मेरा ऑफिस है, और वो 10 साल की जर्नी में अभी आपको बताऊंगी. उसके बाद में हम थोड़ा न्यू नॉर्मल के ऊपर आएंगे और वो क्यों जरूरी आपको अभी समझ में आएगा. सो 10 साल पहले क्या हुआ था, मैंने एक ऐसा फैसला अपनी जिंदगी के अंदर लिया था कि मैं अपना घर छोड़ के अपने लिए एक ऐसा लाइफ बनाने के लिए जो कि मैं चाहती थी, और मैं उसको करने के लिए अपने घर को छोड़ के मैं चली गई यहाँ से. सो आई बिलोंग टू जयपुर and then I moved to IIM Indore, and this is my t-shirt, my favorite t-shirt, which changed my entire life. Post that I did a lot of things, but then 2011 to 2015 मेरा साथ में वही सेल्फ एक्सप्लोरेशन का स्टेज था, वही इंडिपेंडेंस का स्टेज था, जब आप 29 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ के कहीं पढ़ने के लिए वापस जाते हो, और वही सारी चीज़ें मेरे साथ में भी हुई. सो आई मूव्ड टू IIM इंदौर. IIM इंदौर से मैंने 2015 में अपनी पढ़ाई ख़त्म करके चंडीगढ़ आज ही के दिन मूव किया था. आज ये मेरे लिए बहुत स्पेशल दिन और भी है क्योंकि मेरी पोस्ट PhD ज्वाइनिंग के बाद में ये दिन आया था, और मैं ये देख रही हूँ कि 5 साल PhD ख़त्म किए हो गए, 5 साल उसके बाद का टाइम हो गया है. सो उन 5 साल में जो पिछले 5 साल थे उनमें ऐसी चीज़ें हुई, ऐसे घटनाक्रम हुए जिसकी वजह से मेरी चीज़ें बहुत बदल गई. तो मैंने 2015 में थापर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था, और उसके बाद में मैं बहुत जगहों पे घूमी हूँ. तकरीबन 20 कंट्रीज़ मैंने ट्रैवल करे, अकेले ट्रैवल किए इनमें से कुछ, और अलग अलग जगहों पे मैं गई, बहुत सारे मौके मिले. और उनके साथ में जब मैं अपना PhD ख़त्म करने के बाद में ये थापर यूनिवर्सिटी, और मैंने फिर
ज्वाइन किया IIM अमृतसर, और IIM अमृतसर ज्वाइन करने के बाद में ऐसा कुछ इंसिडेंसेस हुए जब मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं 14 साल से एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ, और वो जो सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट तब तक मुझे ऐसा फील नहीं आया था कि स्टूडेंट्स कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे से। मैं ये देखती थी कि मुझे कुछ ऐसा अपने स्टूडेंट्स को अपनी क्लासरूम में ऐसी चीज़ें दिखानी चाहिए या बतानी चाहिए जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आए। तो मैंने एक दिन, जब मैं अमृतसर में प्रोफेसर बनी, आई एम अमृतसर के अंदर प्रोफेसर बनी, वहाँ पे स्टूडेंट्स के दिमाग में या उनकी आंखों में मैंने एक वो सवाल देखा था कि आप खुद तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप बड़ी बड़ी बातें आके क्लास में कर देते हो और ये बता देते हो कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये करें, वो करें, ऐसे करें, वैसे करें। So I felt that integrity in the classroom, being a professor of entrepreneurship, I was not having that integrity. And then meanwhile, a lot of things happened and I identified a couple of ideas. And then I decided that one fine day I should quit, and that day never happened. So कुछ घटनाक्रम होते गए और मैंने IIM अमृतसर से 1.5 साल पहले अपनी नौकरी को छोड़ा और मैं अब अपनी 2 कंपनीज चलाती हूँ। पहली जो कंपनी है उसका नाम है इंकपॉट हब। सो इंकपॉट हब जो है वो एक रिसर्च बेस्ड कंपनी है, जिसके लिए हम जो रिसर्चर्स, जो पोटेंशियल रिसर्चर्स है, जो ऑनगोइंग रिसर्चर्स है, जो PhD करते हैं, तो हम उन लोगों को सपोर्ट करते हैं उनके PhD जर्नी के लिए। सो वी हैव दिस वेबसाइट inkpothub.com, and we put a lot of information. It's a platform wherein people can learn, people can celebrate their research journey, and researcher जिन लोगों ने PhD करा है वो एटलीस्ट ये जरूर जानते हैं कि रिसर्च कितना लोनली जर्नी है, उसको हम सेलिब्रेट नहीं करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम PhD कर लेते हैं, हम पेपर्स लिख लेते हैं, हमारे CV के अंदर ऐड हो जाता है, लेकिन वो सेलिब्रेशन कहाँ पे आता है? क्योंकि हम बहुत लंबा टाइम अपने दिन का पेपर लिखने में, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए पेपर लिखने में, जर्नल पेपर लिखने में, थीसिस के आउटपुट को जनरेट करने में बहुत टाइम लगाते हैं, लेकिन देयर इज नो स्पेस टू सेलिब्रेट। सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मेक दैट स्पेस wherein we celebrate a researcher's journey, and then how those things are happening, उन चीज़ों को हम अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। देन ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे में स्टार्ट हुआ इंकपॉट हब। मेरा एक स्टूडेंट था थापर यूनिवर्सिटी में, जो हर वीकेंड पे मेरे पास में ही वुड कम एंड विजिट, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप की फैकल्टी हुआ करती थी, तो ही वुड कम एंड विजिट मी एंड आस्क मी, मैम ये बता दो, वो बता दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। So this company is an outcome of those interactions. So those interactions actually helped me understand that what kind of gap we are fulfilling over here, कि एक रिसर्चर की जर्नी के अंदर हम क्या क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम लोगों ने फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया, एंड देन we applied to ISB Mohali's incubation center, and we got through after 3 major rejections. फिर हम इसको अभी स्टार्ट करे हैं। ये कंपनी पिछले 1.5 साल में वेबसाइट इसकी 3 बार पिवट हुई है। अगर मैं पुरानी और अभी की वेबसाइट आपको दिखा के कंपैरिजन अगर करने के लिए बोलूँ, तो आपको लगेगा कि एकदम इसका रूप, इसका स्वभाव, इसका तरीका सब कुछ बदल चुका है। तो हमने पिछले 1.5 साल में इसको 3 बार पिवट कर लिया है और प्रोडक्ट्स को बहुत सारे रिविजिट किए हैं। कोरोना टाइम से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, हमारे कुछ इन्वेस्टमेंट होनी थी, वो इन्वेस्टमेंट बैकआउट हो गई है। वी गॉट 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट, बट इट डिड नॉट हैपन बिकॉज कोरोना टाइम्स में हमें इन्वेस्टर्स ने बैकआउट कर लिया यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग विच हैपेंड टू इंकपॉट हब ड्यूरिंग दीज कोरोना टाइम्स। देन अनदर कंपनी इज कॉल्ड एज ड्राइव ऑन माई ओन। आपको ये जान के शायद थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं एक बहुत पैशनेट ड्राइवर हूँ और मैं 4 व्हीलर चलाती हूँ। और मैं ये इतना अभी आपको और थोड़ा बाद में बताऊंगी कि ये 4 व्हीलर चलाना मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात या छोटी बात, हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन मेरे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगी। सो मैं पिछले 10 साल से कार चला रही हूँ और उसके पहले 10 साल से स्कूटी जो होती है वो चला रही थी। सो ये पूरा प्लेटफॉर्म मैंने ड्राइविंग और डिसेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर स्टार्ट किया। I realized after driving for last 10 years, car driving specifically, और उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर ये रियलाइज किया कि
क्योंकि मैं ड्राइव कर रही हूँ, मैं एक मॉडिफाइड कार के ऊपर अपनी मैं ट्रैवल करती हूँ, तो लोग मुझे देखते थे और पूछते थे कि आप अगर गाड़ी चला पा रही हैं तो क्या आप हमें भी सिखा सकती हैं। अब यहाँ पे मैं चला पा रही हूँ, ये वर्ड मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं चला नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे पैरों में डिसेबिलिटी है और मैं लो वेस्ट डाउन पैरालिसिस है पोलियो के कारण से, जिसकी वजह से मैं गाड़ी चला नहीं सकती थी। लेकिन जब मैंने चलाना शुरू किया तो लोगों को लगता था ये कैसे पॉसिबल है किसी डिसेबल्ड के लिए। मेरे से पूछते थे आके कि मेरी गाड़ी में कौन कौन से अरेंजमेंट्स है, कौन कौन से मॉडिफिकेशंस है। सो आई यूज्ड टू गिव देम आइडियाज अबाउट इट। धीरे धीरे लोगों ने मेरे से सीखना शुरू किया। फिर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग मेरे पास आ क्यों रहे हैं गाड़ी सीखने के लिए। मैंने एक मारुति ड्राइविंग स्कूल से पूछा क्या आप डिसेबल्ड को कार नहीं सिखाते, या फिर मैंने टोयोटा ड्राइविंग स्कूल से पूछा सेम क्वेश्चन। तो मैंने तकरीबन 2000 ड्राइविंग स्कूल्स को कांटेक्ट कर लिया इंडिया में और उनसे ये पूछा कि क्यों वो लोग ड्राइविंग नहीं सिखाते। मेरे को तकरीबन 8-9 रीजन समझ में आए, जिसके अंदर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, कुछ इंटरनल फैक्टर्स थे। एंड देन आई रियलाइज्ड this is the right time when we can put in our efforts to build a school for people with disabilities which can train them how to drive a car. ड्राइविंग सेशन स्टार्ट किए। उसके बाद में ड्राइविंग सेशंस के बियॉन्ड हमने कॉफी कॉन्वर्सेशंस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स बहुत सारे वो मैंने किए। अभी जयपुर में व्हेन आई क्विट माय जॉब एंड देन आई केम बैक टू जयपुर फ्रॉम अमृतसर, हमने यहाँ पे होम स्टे स्टार्ट किया अपना। और होम स्टे का मतलब है कि कोई अगर इंडिया के किसी भी कोने से जयपुर में आके गाड़ी सीखना चाहता है तो वी हैव अ स्पेस, the person can stay here and this home stay is completely accessible. अब accessibility का मतलब क्या होता है? accessibility का मतलब होता है कि एक disabled person के लिए कोई जगह क्या 100% accessible है, सीढ़ियाँ, रैंप, हैंड रेल और बाथरूम्स, रहने का जो भी अरेंजमेंट है वो किस लेवल का है। अगर आप अपने हॉस्टल्स देखोगे या अपना घर देखोगे तो क्या आपका घर कभी ये सोचा है कि एक व्हीलचेयर यूजर के लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। ये सारी चीजें सोचते हुए मैंने अपने घर को एक रूम को कन्वर्ट कराया जिसके अंदर इस तरीके का अरेंजमेंट है, कोई भी आके हमारे घर पे रह सकता है और गाड़ी सीख के वापस जा सकता है। फिर मैंने इसी चीज को अभी यूट्यूब चैनल के ऊपर स्टार्ट किया है और सारी इंफॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मैं देती हूँ। 327 मेरे अभी सब्सक्राइबर्स है, बहुत कम है लेकिन इसकी व्यूज बहुत ज्यादा है। टोटल अभी 10,000 के आसपास व्यूज पहुंचने वाला है और ये बहुत कम टाइम हुआ है मुझे स्टार्ट किया। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट इट कैन इंक्रीज द रीच एंड ऑल। और आप सबको बताइएगा कि ये ड्राइविंग स्कूल इस तरीके से अवेलेबल है ताकि लोग जान पाए। ठीक है। अब एक और चीज कोरोना टाइम्स में जो हुई है वो दो हुई हैं जिस वजह से मैंने ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किया था कि मैं सिखाऊंगी। पहला, फिजिकल डिस्टेंसिंग के कारण मैंने सारे ड्राइविंग सेशंस बंद कर दिए, नो ड्राइविंग सेशंस गोइंग ऑन एट ऑल। दूसरा, होम स्टे नहीं हो रहा है क्योंकि लोग आ नहीं पा रहे हैं इधर उधर से। जो भी लोग मेरे पास दिल्ली या हरियाणा, पंजाब से जो लोग आते थे अब वो आ नहीं पा रहे हैं, तो होम स्टे भी completely shut है। Only thing which is running is online coffee conversations, some kind of seminars and YouTube channel. That is it, nothing else. जिस आइडिया के साथ मैं स्टार्ट किया था वो अभी नहीं हो पा रहा फिजिकली, क्योंकि ये सारी सर्विसेज है जो फिजिकल प्रेजेंस रिक्वायरमेंट रखती हैं और वो हो नहीं पा रही हैं। देन द नेक्स्ट थिंग, ये मैं आपको एक छोटा वीडियो है वो मैं जरूर दिखाना चाहूंगी। मैम ऑडियो ऑन है वहाँ पे, क्या हम दिखा सकते हैं वीडियो? Yes, ma'am. Audio on है, ma'am. Before sharing, just click on optimize screen share video. जैसे आप शेयर पे क्लिक करेंगे, नहीं ये स्क्रीन पे ही है, शेयर नहीं कहीं पे भी। प्ले कर दीजिए। हाँ We are not able to listen the volume, ma'am. नहीं अभी चला नहीं है, मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो जाए। या Ma'am, voice is not audible, Anita ma'am. नहीं ये चालू, आपके वहाँ पे चालू हुआ दिख रहा है क्या?
नहीं मैम, चालू हुआ नहीं दिख रहा अभी। हाँ, चालू ही नहीं हुआ है यहाँ से। Start here. It's not started yet. ओके, सो मैं इसको स्किप कर सकती हूँ, मैं ये शेयर कर दूंगी पीपीटी, आप देख लीजिएगा। सो ये वीडियो है, मेनली ये बताता है कि जो कार मॉडिफाई हुई है वो क्या मॉडिफिकेशन है। कोई किसी को मैं गाड़ी सिखा रही थी, तो ये पंजाब केसरी ने मेरे को अमृतसर में फीचर किया था इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। सो ये एक इंटरव्यू टाइप की चीज़ है, और आप इसको बाद में देख सकते हैं, मेरे चैनल के ऊपर ये अवेलेबल है, यू कैन वॉच इट। सो नेक्स्ट चीज़ जो मैं अभी बताऊंगी आपको, ओके। सो जब मैंने अपना ड्राइविंग स्कूल स्टार्ट किया था, सो मेरे पास में ये बहुत सारे और फीचर्स जिन्होंने कैप्चर करा था मेरे वीडियो, इसको ड्राइव ऑन माई, उनको ये सारी चीज़ें एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि लोगों को कैसे पता चला कि मेरे पास में एक ड्राइविंग स्कूल है और वो चल रहा है। सो दीज मैनी देर आर अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया, print media, newspapers and all, they featured the story overall. And not to boast, but these are 2-3 things happened in the last year in 2019, wherein I got the fellowship award from the India Inclusion Fellowship, Dr. Batra's Positive Health Award. ये सब आपको अनु मैम ने ऑलरेडी बता दिया है। Okay, so now, okay, so this is a very important question which I have asked myself today, because on 14th of September, I finished my PhD and moved to Chandigarh after my PhD. So my PhD got over on September 4. 10 days I took to move, shift from Indore to Chandigarh. So this is today, Monday in the morning. मैं अपने Instagram के ऊपर ऐसे कुछ ना कुछ share करते रहती हूँ रोज. So I actually asked this question, does my PhD define me? So I asked this question and I thought that already 5 साल हो गए हैं इस चीज़ को किए। 5 साल पहले मैंने इस चीज़ को स्टार्ट किया था, तो टोटल 10 साल PhD की जर्नी को एक्सपीरियंस करते हुए हो गए। बहुत सारी चीज़ें इसके बाद में बदली हैं। तो मेरी लाइफ के कुछ लेसन्स हैं जो मैं आज आपको दूंगी। पहला लेसन है कंफर्ट जोन को छोड़ना। आप लोग, बहुत सारे लोग हॉस्टल में आए होंगे, और कुछ लोग हॉस्टल अभी कंप्लीट करके ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके पोस्ट ग्रेजुएशन में गए होंगे, कॉलेज स्कूल खत्म करके कॉलेज में आए होंगे। सो अनफॉर्चुनेटली अभी कोरोना टाइम के कारण आप सब चीज़ें घर से कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें, जब हम अपना घर छोड़ते हैं, जब हमारा कंफर्ट जोन छोड़ते हैं और जब हम लोग बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ होती है। सबसे पहले डर लगता है, हमें देखते हैं कि हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, हमारे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। पहली बार ट्रेन में बैठने में बहुत डर लगता है, पहली बार फ्लाइट में बैठने में बहुत डर लगता है, पहली बार ड्राइव करते हैं तो बहुत डर लगता है। लगता है कि नहीं लगता है, क्योंकि लगता है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कभी सोचते, जो चीज़ें नहीं सोची होती हैं उनके लिए हम प्रिपेयर करते हैं अपने दिमाग को। तो इसका मतलब जब भी हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आता है फियर जोन, और उस फियर जोन के बाद में हम नई चीज़ें, जब हम उस फियर जोन को ओवरकम करने लगते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि हम अपने आप को एक लर्निंग कर्व के अंदर एंटर करवा रहे हैं, और हम अपने आप को एक नए ग्रोथ पाथ के ऊपर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम हमारे अपने लाइफ के पर्पस को ढूंढते हैं, हम हमारे ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, हम वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं जो हम कभी अपने सपनों में सोचे हुए होते हैं। लेकिन अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते तो ये चीज़ होना ज़रा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कंफर्ट जोन में रहना कोई दिक्कत वाली बात है या हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है। इट्स जस्ट दैट how you feel during those days, during those periods when you feel that इससे बाहर निकलना ज़रूरी है या नहीं निकलना ज़रूरी। आप अपने आप से ये सवाल लाइफ के किसी भी स्टेज में पूछ सकते हैं, क्या मेरे को ये कंफर्ट चाहिए या इससे मुझे बाहर निकलना है। सो इट्स ऑल आवर विजन, ड्रीम्स, it's all about our own things. You decide what exactly you want. I decided to move out of my home, out of my parents' comfort, out of my parents, वो अनसीन जो बबल होता है ना, जिसके अंदर हमें इतना ज्यादा ध्यान रख लेते हैं कि कभी ना कभी वो अपने आप सफोकेट करने लगता है कि नहीं अब तो बहुत हो गया है, अब मुझे अपने, जब हम लोग, जब आपको एक एग्जांपल बताती हूँ यहाँ पे,
मेरे पापा बैंक में हैं, थे, अभी रिटायर हो गए। बैंक का मुझे भी नहीं आता था, कैसे चेक लिखते हैं, कैसे अकाउंट खोलते हैं, कैसे पैसा ट्रांसफर करते हैं, क्या डेबिट क्रेडिट होता है। बैंक का डेबिट क्रेडिट उल्टा होता है जो हम लोग अकाउंट्स में क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो हम लोग को बैंक का डेबिट क्रेडिट क्या होता है मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इंटरनेट बैंकिंग क्या होता है, पासवर्ड आता था, या जो वो भी वो जो हमारे पास वो डिजिट्स आते हैं ना, वो डर लगता था मुझे कि मैं डालूं या नहीं डालूं। ये सारी चीजें मेरे को लगती थी, लेकिन क्यों लगती थी, क्योंकि मेरे पापा ये सब चीजें देखते थे। लेकिन क्या ये हमेशा हमारे पापा देखेंगे, ये चीजें हमें सोचने वाली बातें हैं। क्या हमेशा मुझे अपनी मम्मी खाना परोस के देंगी, या मैं कभी बनाना भी सीखूंगी। क्या हमेशा मुझे कोई और शॉपिंग करके लाके देगा, या मैं खुद से अपने फैसले लूंगी कभी कि मेरे को बाहर जाना है। क्या हमेशा मैं अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपने पापा को सौंप दूंगी, या अपने हस्बैंड को सौंप दूंगी, या अपने भाई को सौंप दूंगी, या अपनी बहन को सौंप दूंगी। नहीं, मुझे खुद को कब करना है ये फैसला मुझे खुद करना है। तो कंफर्ट तो है कोई और देख रहा है तो, लेकिन कब मैं खुद से शुरू करूं वो सब चीजें ये हमें डिसाइड करना पड़ता है। सो नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताऊंगी, जो मैंने एक्चुअली ये किया है, जरूरी नहीं है आप देखें, लेकिन कंफर्ट जोन को छोड़ के चलते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें फॉरगो करनी पड़ती हैं। तो आप वो खुद डिसाइड करो अपने लिए कि आपको क्या करना है। नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताऊंगी, ये मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने अभी इंस्टाग्राम पे अपने शेयर किया है कि मेरा इकिगाई क्या है। अगर मैं आपको ये बताऊं इकिगाई का मतलब क्या होता है, द पर्पस ऑफ बीइंग, व्हाई वर यू बोर्न एंड व्हाट इज योर पर्पस ऑफ बीइंग। ये जो बुक्स है, जो पैशन से रिलेटेड बुक्स होती हैं, बहुत सारे जो बोलते हैं कि आप अपना सब कुछ छोड़ के अपने पैशन की तरफ चले जाओ, या ये कर लो, ये वो कर लो। आजकल ये बहुत सारा ट्रेंडिंग चीजें हैं कि अपने पैशन के लिए बहुत सारी चीजें कर लो। एक्चुअली मैंने इस चीज के ऊपर बहुत सोचा, क्या हमें वाकई में अपने पैशन के लिए करना चाहिए सब चीजें छोड़ छाड़ के। क्या किसी को भी अपना जॉब छोड़ना चाहिए, क्या किसी को भी अपना घर छोड़ना चाहिए सिर्फ अपने पैशन को लेके। ये बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ करना चाहिए, लेकिन हमें ये सोचना जरूरी है कि हमारा लाइवलीहुड कैसे चलेगा, हम किस चीज के ऊपर सबसे अच्छे, क्या हम उसकी वजह से किसी और को कंट्रीब्यूट कर पा रहे, या हमें सिर्फ अपने लिए ही जीना है। मुझे दारू पीना बहुत अच्छा लगता है मान लो, लेकिन क्या वो मेरा पैशन है, मैं सारे दिन कुछ नया नया टेस्ट करना चाहती हूँ। इज इट कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन समबडीज लाइफ, इज इट गिविंग मी मनी, is it giving me something good about myself? So when we try to find out composition of mix of all these things, what I love, what I am good at, what I can be paid for, and what the world needs, when we define these certain aspects in our life, we know that why we exist for, what is our passion and what is our reason for being. तो मैंने अपनी लाइफ में ये देखा कि मेरे को ड्राइविंग आती है, मेरे को दूसरों को सिखाने में मजा आता है, मेरा वो स्किल डेवलप्ड है, मेरे को अच्छा लगता है, तो क्या मैं उसको वोकेशन बना सकती हूँ। जब मैंने ड्राइविंग सेशंस लिए तो मुझे इतना समझ में आया कि लोग पैसे देने के लिए तैयार हैं, एंड दिस इज अ नीश मार्केट। और मार्केटिंग की फिलोसफी अगर आप लोग सब जानते हैं तो आपको ये समझ में आएगा, जिसका नीश मार्केट होता है उसके लिए आपको पैसा ज्यादा मिलता है। ठीक है, आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लीजिए जिसका एक नीश मार्केट है, उसकी प्राइसिंग हमेशा हायर होगी। I also kept my pricing higher than the other driving schools, because everything whatever I am designing for a person with a disability, किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी हो, वो डिसेबिलिटी यूनिक है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग क्यूरेट करना पड़ता है प्रोग्राम, पूरा पूरा ट्रेनिंग सेशन डिजाइन करना पड़ता है। सो इट डजंट मीन दैट वन साइज फिट फॉर ऑल की ड्राइविंग सेशन बना दिए, मॉड्यूल बना दिए और सबको वही दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर एक का माइंडसेट डिफरेंट है, हर एक का डिसेबिलिटी का नेचर डिफरेंट है, अकरेंस डिफरेंट है, कब हुई है डिसेबिलिटी वो डिफरेंट है। सो हमको हर चीज बिल्कुल नहीं देनी पड़ती है, तो निश मार्केट है, मेरे को पैसा ज्यादा मिलता है, सो आई एम गेटिंग फॉर व्हाट आई नो एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर इट, and then the world also needs it. So I identified the opportunity around it when I realized that okay, 2000 driving schools are not giving this particular driving sessions to person with disabilities, तो मैं वहां पे कर सकती हूँ ये। The combination of all fixed really well, and that's how I started Drive on my own. Okay, I cannot say this thing with Inkpot Hub, but for Drive on my own, I can definitely say that my ikigai is the purpose of being, of me existing alive, just because I want to give these driving sessions to people so that they can be independent, they can be free from any dependency on anyone. Okay, so this is my life lesson too. I don't know whether how and when we will realize. I realized this ikigai at the age of 38. I'm turning 39 in the next month, so I realized in I actually took sweet 38 years of my life
to understand what is my reason of being. हो सकता है मुझे 50 साल के बाद में समझ में आए कि ये भी मैंने अच्छा नहीं किया, मुझे कुछ और चीज करनी है. Maybe I can do something else later, but then right now I know that world needs this. I know this. I will be able to sustain my home and my things which I need. I also need to eat food. So उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, वो कहाँ से आएगा? So वो चीज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, लोग पैसा देने के लिए तैयार है, मैं लेने के लिए तैयार हूँ. और वो चीज, it's not a charitable business. People with disabilities is not about charity. So मुझे ये समझ में आ गया, and now I'm working towards it. Then the next thing is make it happen. How you make things happen in your life. There are two things which I have learned. But kills yes. मैं ये करना चाहती हूँ लेकिन मैं ये नहीं कर सकती, लेकिन मुझे वो लोग बोलते हैं, लेकिन मुझे कहना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, लेकिन मैं क्यों नहीं करूं, लेकिन ये जितने भी सवाल जहाँ पे होते हैं लेकिन वाले, वो सब, बट वाले, वो सब हम लोगों को सोचने पे मजबूर करते हैं, लेकिन हमें रोकते जरूर है. हमें ये कहते हैं कि अच्छा मैं करना चाहती हूँ, अच्छा तुम भी कर रही हो, लेकिन मेरे पास में, जैसे मेरे जो कंटेम्प्रेरी है, ऑल माय फ्रेंड्स फ्रॉम माय प्रीवियस इंस्टीट्यूट जहाँ मैं पढ़ाई करी हूँ, सभी बोलते हैं यार तेरी तरह मैं भी करना चाहती हूँ अपनी जिंदगी के, लेकिन मेरे तो 2 बच्चे हैं. क्या बच्चे एक्सक्यूज है? लेकिन मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे को बच्चों को ट्रेनिंग देनी है. नहीं, मैं नहीं कर सकती क्योंकि मेरे को अपने बहुत सारी और चीजें देखनी है. मेरा एक नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अपने ऑफिस की ड्यूटीज पूरी करनी है, वो भी बहुत जरूरी है. लेकिन जहाँ पे आपने लगाया, आप वहीं पे 50% अपना जो थॉट है. मैं भी सोचती थी IIM की नौकरी छोड़ना बहुत बड़ी बात लगती है लोगों को, लेकिन मैंने छोड़ी. तो क्या वाकई में दूसरों के लिए ये वो लेकिन है? किसी ने भी, मेरे साथ वालों ने अपनी IIM की नौकरी तो नहीं छोड़ी है. सब लोग परेशान होके, सब लोग दुखी होके कर रहे हैं, लेकिन छोड़ी किसी ने भी नहीं है. So but kills yes, and that's a very thoughtful thing which we also have to think कि क्या हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. So ये but kills yes. दूसरा सवाल होता है हमें, मैं ये बहुत ज्यादा सोचती हूँ, ज्यादा सोचने से इरादे कमजोर होते हैं. आई डोंट नो कितने लोग इसको एग्री करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर मानती हूँ कि जितनी ज्यादा मैं सोचूंगी, मेरा दिमाग मेरे को नेगेटिव चीजें बहुत बताएगा उस पार्ट के लिए. तो अगर मेरे दिमाग में मैंने स्थान ली है कि ये चीज मुझे करनी है, तो मुझे करनी है. उसके लिए सोचने, एक बार फैसला कर लिया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के जितने भी आउटकम्स है, कॉन्सिक्वेंसेस है, वी शुड बी रेडी फॉर दोस. सो व्हेन आई डिसाइडेड टू मूव आउट ऑफ माय होम, आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन, आई मूव्ड टू इंदौर. आई नेवर ट्रैवल्ड अलोन इन अ ट्रेन, नेवर एवर. मुझे नहीं पता टिकट कैसे कराते. 10 साल पहले ना ऑनलाइन टिकट्स भी नहीं होते थे, आपको काउंटर पे जाके करानी पड़ती थी. और होते तो भी, जब अगर होते भी थे तो भी IRCTC की वेबसाइट इतनी स्लो होती थी कि आप कभी नहीं करा सकते, आपको काउंटर पे जाके ही करानी पड़ती थी. तो वो सब चीजें मैंने कभी नहीं देखी. पहली बार जब मैं घर आके वापस इंदौर जा रही थी, मेरी मम्मी मेरे साथ गई थी ये देखने के लिए कि मैं अकेले कैसे ट्रेवल कर लेती हूँ. एंड देन वन शी रियलाइज्ड कि ओके शी कैन मैनेज. सो उसके बाद शी नेवर ट्रेवल्ड विद मी, बिकॉज शी गॉट दैट फील, शी गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि ये कर सकती है अपने आप से. तो उनको सिर्फ ये जानना था मैं सीढ़ियाँ कैसे चढ़ रही हूँ, मैं किस तरीके से ऊपर रेलिंग पकड़ के चढ़ रही हूँ, ट्रेन में कैसे चढ़ रही हूँ, जहाँ पे मैं नॉर्मल सीढ़ी नहीं चढ़ सकती हूँ तो वहां पे मैं ट्रेन की इतनी 3 सीढ़ियाँ कैसे चढ़ पा रही हूँ. तो शी मेड इट श्योर दैट मैं वो देखे मुझे, और उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस आए. लेकिन मैंने ये मान लिया था कि जितना मैं सोचूंगी कि मैं ट्रेन में हाय कैसे ट्रेवल करूंगी, हाय मैं पढ़ाई कैसे करूंगी अकेले रह के, हाय मैं कैसे आगे मैनेज करूंगी चीजें, हाय मैं बैंक कैसे जाऊंगी, अगर मुझे कुछ हो गया तो हॉस्पिटल कैसे जाऊंगी, ये सब चीजें मैंने नहीं सोचा. मैंने सिर्फ डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, एंड आई मूव्ड इट. सो ये एक वीडियो और है, आई डोंट नो चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन ये मेरा स्काई डाइविंग का वीडियो है जो मैंने 2019 जून के अंदर लंदन जाके स्काई डाइविंग करा था. ये वीडियो अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, या मैं आपको शेयर कर दूंगी इसका लिंक यहाँ पे. सो आप देख लीजिएगा ये. अभी आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन. Okay. So I have followed this
कोट बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जहाँ पे ये कोटेशन वगैरह आपको बहुत जगहों पे मिल जाएगा। मेरा यहाँ पे कोई मोटिवेशनल सेशन देने का नहीं था आपको, रीजन कुछ भी यहाँ पे वो चीज़ नहीं बताना था, आप इसको देख सकते हैं। आई एम स्किपिंग दिस एज वेल। नाउ व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वीडियो अगेन, ये मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये सीढ़ियाँ चढ़ने का वीडियो है जिसमें मैं ऊपर कैसे विदाउट हैंड रेल सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ, लेकिन ये भी अभी शायद नहीं चलेगा। Ma'am, are these videos on YouTube? ये वाला वीडियो नहीं है मैम, ये डेफिनेटली नहीं है वहाँ पे। बाकी मिल जाएंगे, ये वाला नहीं किया, ये सिर्फ स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए है, इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। Ma'am, if you could play it directly from the system. आई कैन ट्राई, बट मुझे ये भी नहीं पता ये कहाँ सेव है। एनीवेज मैं ये भेज दूंगी आपको, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस मैं अपने हाथ ऐसे कर करके ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ और वैसे ही मैं उतर के नीचे आ रही हूँ। ओके, सो एक स्लाइड नंबर 14 है ये वाली, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे और अगले 3 मिनट में सिर्फ इसके ऊपर बात करूंगी, और उसके बाद में मैंने जैसा प्रॉमिस किया था अनु मैम को, मैं 11:20 पे आई क्लोज द सेशन, 11:15 पे इनफैक्ट। सो ये जो है फ्यूचर ऑफ वर्क और न्यू नॉर्मल, मैंने आपको इम्पोर्ट हब की स्टोरी बताई, मैंने आपको ऑन माई ओन की स्टोरी बताई, मैंने आपको अपने IIM के एक्सपीरियंस की स्टोरी बताई कि मैंने अपनी जॉब को क्विट किया था, और मैंने वो भी बताया था कि मैंने अपनी घर छोड़ा था और मैं इंदौर गई अपना अकेले रहने के लिए, और मैंने बहुत सारा फॉरेन ट्रेवल अकेले किया है। तो जो न्यू नॉर्मल था, एवरी डिसीजन विच आई टुक वाज अ न्यू नॉर्मल फॉर मी। एवरी डिसीजन विच वी मेक इन आवर लाइव्स इज अ न्यू नॉर्मल फॉर मी। कुछ एक्सटर्नल होता है, कुछ इंटरनल होता है। अभी क्या एक्सटर्नल है, कोरोना टाइम्स एक्सटर्नल है, जिसके बारे में हम सब सदमे में आए हुए हैं, सब दुखी है, सब परेशान है, सब हैरान है कि कब जाएगा, तो हम वापस उस नॉर्मल लाइफ में चले जाएंगे। लेकिन जब हम वापस ये सोचते हैं कि इस न्यू नॉर्मल में हमें अडेप्ट कैसे करना है, क्या अप्रोच रखना है, किस तरीके से मैनेज करना है, सो मैं आपको ये जो आपको इमेज दिखाई दे रही है और इसके अंदर आपको ये वाइट बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, सो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ एक सजेशन बोलूंगी कि ये आपके लिए कैनवस है। दिस इज अ ब्लैंक कैनवस, you decide how you want to make it for yourself. Okay, now what does that mean? I'll give you one simple example over here. One of my cousins did his engineering 2 years ago. Okay, बहुत छोटा है मेरे से, उसने इंजीनियरिंग खत्म करी और 2 साल तक उसके बाद में ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, अपना तैयारी करके ही वॉज प्रिपेयरिंग। आज की डेट में मैं उसको बोलती हूँ कि इंकपॉट हब के लिए यू कैन वर्क, इफ यू नो ड्राइविंग यू कैन ऑल्सो वर्क विद मी, if you feel that there are certain things which Inkpot Hub can provide you, you can be my employee. One thing, I actually observed 2 things. He is my cousin, but still I am sharing with you all. पहला चीज वो कहता, दीदी मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मैं डेफिनेटली ये काम तो क्यों करूं। दूसरा वो ये कहता है कि आपको जो चीजें चाहिए, मुझे वीडियो एडिटिंग चाहिए, मुझे आर्टिकल राइटिंग चाहिए, मुझे लोगों से इंटरेक्शन चाहिए, मुझे चाहिए कि आप PhD की तरफ की चीजें ढूंढ के मेरे को लाओ और बताओ। सो इट्स ऑल अबाउट दोज थिंग्स, सो इट्स अबाउट रिसर्च एंड ऑल। सो ही सेड आई कांट डू दैट। अनदर थिंग व्हिच ही सेड, I don't want to learn video editing, I don't want to learn blog writing, I don't want to learn all these things. तो मैंने इंजीनियरिंग क्यों करी? So one thing which I have realized is the level of complacency, the level of your background is actually stopping you to do that. So if I am a PhD, now can do video editing, now can do recording, now can do driving car recording and all. So why can't people learn these new type of skills? और सच बताऊं मैं आपको, आज की डेट में कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपको आगे लेके चली जाएंगी अगर आप अपने आप को अप स्किल नहीं करेंगे तो। और आप पिछले 17 सेशंस में भी शायद यही बात सुन चुके होंगे कि अपने आप को अप स्किल करो और अपने आप को नई डायमेंशन में एडजस्ट करने की कोशिश करो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब आप ग्रेजुएट होंगे अपने स्कूल से MBA करके, BBA करके, या जो भी आप कोर्स कर रहे हो वो करके, हमें तभी सबके CV एक जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट में सबका CV एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है। अब वहाँ पे आपको ये बताना है कि आप किस तरीके से अपने आप को उस
भीड़ के अंदर से अलग करते हैं। आप भीड़ का हिस्सा रह के भी खुश रह सकते हैं, लेकिन भीड़ से अलग करके आपको उस न्यू नॉर्मल में एडजस्ट करने में आसानी होगी। सो यू नीड टू फाइंड आउट विच थिंग यू आर गुड एट. Are you good at speaking? Are you good at writing? Are you good at coding? Are you good at what? Those things you need to identify for yourself. Then एक और चीज बताऊंगी, ये भी फिलॉसफी है जिसको हम सबने मान लेना चाहिए कि मैं अकेला अकेला नहीं हूँ। इस पर्टिकुलर चीज में, ये जो न्यू नॉर्मल है, इसमें आप अकेले अकेले नहीं हैं। अगर हम दूसरों से इंटरैक्ट नहीं करते ना इन दिनों में, ये जो डेज हैं, अगर हम इंटरैक्ट नहीं कर रहे तो हमें लगता है हाँ ये क्या हो गया मेरे साथ में, ये तो हमारे साथ समस्या, बहुत बड़ी समस्या आ गई। ट्रस्ट मी, यहाँ पे इंडिया के अंदर 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, उसके अंदर 2 करोड़ लोग वो होंगे जो अपने पेरेंट्स की इलनेस से परेशान होंगे, 4 करोड़ वो लोग होंगे जो डिसेबिलिटी से परेशान होंगे, 10 करोड़ वो लोग होंगे जिन्होंने अभी बच्चे डिलीवर किए हैं, 15 करोड़ वो लोग होंगे जो अपना जेई और नीट और ये सारे एग्जाम्स लिख रहे होंगे, और कुछ लोग ऑफिस जा रहे होंगे, कुछ डॉक्टर्स होंगे। सबके लिए ये नया नॉर्मल है। लेकिन आप अगर अपना एक वो कम्युनिटी देखोगे तो वो अकेले अकेले नहीं है। आप जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ये 100 लोग नहीं है, ये तकरीबन 2 करोड़ लोग हैं जो आज ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम अकेले अकेले नहीं है। वी हैव टू अडेप्ट, वी हैव टू एडजस्ट, वी हैव टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल टू गेट गोइंग। और ये टाइम सेम नहीं रहेगा, ये बदलेगा। सो ये फिलॉसफी है, लेकिन डेफिनेटली हमारे ऊपर वर्क करती है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज focus on what you can develop. I learned iMovies एडिटिंग सॉफ्टवेयर, फिल्मोरा एडिटिंग सॉफ्टवेयर, कैमरा कैसे चलाते हैं, ये सब पीएचडी करने के बाद में। ठीक है, गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशंस कैसे करवाते हैं, ये सब चीजें सीखी जब मैंने ड्राइविंग सिखाई लोगों को। सो ये सिर्फ पीएचडी तक रुक नहीं गया, एमबीए तक रुकना नहीं चाहिए, इंजीनियरिंग तक रुकना चाहिए नहीं चाहिए, ग्रेजुएशन तक रुकना नहीं चाहिए। हमें हर नए दिन के लिए कुछ नया सीखना चाहिए। मेरा ड्राइविंग सेशन बंद है, लेकिन क्या कंपनी बंद हो गई? नहीं हुई। मेरा ट्रैवलिंग अभी कंप्लीटली बंद है। इंपोर्ट हब के लिए आई यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट। आई थिंक अनु मैम जानते हैं कि आई हाउ मच ट्रैवलिंग आई हैड एवरी वीकेंड। आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम जयपुर टू मोहाली, अटेंड माय सेशंस, कम बैक। मेरा घर यहाँ पे, मेरे पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई डिड. So you try to adapt with these new normals. Just learn, upskill yourself and stay positive, stay happy, watch movies और एंजॉय करो लाइफ को। घर वालों से बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अपना एक टाइम शेड्यूल बनाइए, डिसिप्लिन बनाइए अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत डिस्कस मत करिए कोरोना कोरोना कोरोना। कुछ नहीं होना, कोरोना का रोना बंद होना चाहिए, बस कुछ नहीं होएगा। सीरियसली आप अपना ध्यान रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें, दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कीप कॉन्टैक्टिंग मी, आई एम वेरी हैप्पी टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरा फिजिकल इंटरेक्शन अभी बंद हो रखा है। So I'm very keen to learn from students now. So please contact me. सब जगह पे मैं available हूँ. So please get in touch with me. Thank you so much Anu ma'am, Kaval sir, Kanika ma'am, Vatsala, Rajesh sir, all the students. Thank you, ma'am. Thank you so much. Do we have questions here? Thank you so very much, ma'am. On behalf of everyone at APJ Institute of Management and Engineering, I'd like to convey our heartfelt gratitude to Dr. Anita. Ma'am, I guess that you are not just one of the most inspiring, but the most inspiring person, the most inspiring woman, I would say, whom I have heard, sharing your life experiences, your entrepreneurial journey, I guess would have reinforced and motivated everyone to go ahead and do something wonderful in life. Your tips were not just, they were not just inspiring, but I would say they were realistic also. You talked about this term, which was really new to me, ikigai. If I am pronouncing it right, would you correct me, please? Ikigai. Ikigai. So, the day or the purpose of your being, the very reason of your being. When you were discussing about that, you said that, there's so many books which talk about passion and being committed to your passion. It's not just about that. I noted down, some of the very important things. You have also to see what you really are good at, what you are going to do. Would it really be contributing to the life, into the lives of others? And does the world need that? And you talked about how the venture
you opted for was kind of niche market, and people are willing to pay you extra. And yes, of course, very deservingly, you had the right to demand something extra, because as you mentioned, it was not just one model fit all kind of a thing for you. So very, very realistic. And yes, there were some very beautiful lines in between, like, but kills, but But kills, till yes, yes. but kills, yes, yeah. So that was very, very motivating. And yes, I guess in India, as you concluded in the last part, we do get complacent, and sometimes our background do keep us holding back. Especially, somebody who's an engineer would believe that he would be degrading himself if he would learn video editing or content writing. So you are yourself an example to the fact that even a PhD, somebody doing PhD and working at such a prestigious organization, which probably is a dream for all the faculty members listening to this webinar as well. But leaving that and just forsaking that to pursue your passion is actually very, very motivating. So thank you so very much, and would love to be in contact with you in future as well. So keep motivating, inspiring everyone. I was just marveled at watching your pictures, though we could not unfortunately watch the videos on skydiving, how you have traveled the world. Really very motivating. Hats off. Big salute to you. Thank you so very much. Thank you. Thank you, Anita ma'am. Thank you from the core of my heart. I'm really indebted to My you pleasure. for And such a there is short a notice. Yeah. question. There is a question from one of the students. If you could just, like to say something. I guess though the answer already would have been conveyed to her. She says that there's a girl, Surbi. She says that she wants to do a lot, but she's not able to. So just the same thing as you were mentioning. We would keep on holding ourselves back. So would you like to say something to her, to Surbi? So it's just that one day, one fine day, you will have your triggering moment in your life, and then you will decide for yourself that threshold level and that thing which is troubling you a lot. The moment you realize that this is troubling me a lot, बस बहुत हो गया अब नहीं. The moment that feeling will come, automatically वो able, unable जो है वो able में convert हो जाएगा. So उसके लिए there is no one solution. It's just that how much you are ready to take. वो कितना आप अपने अंदर वो चीजें एडजस्ट करने का, अडेप्ट करने का, या उन सब चीजों के साथ रहने का आप में हिम्मत है. जिस दिन हिम्मत खत्म हो जाएगी उस दिन आप अपने लिए डिसाइड कर लेंगे. So that's the only thing which I have, and I have actually followed that path. Maybe there are some different paths, but whatever I have followed, I actually did that. So IIM Amritsar छोड़ने का सिर्फ ये reason नहीं था. There were certain more reasons. If I give you 1 minute, I'll quickly tell you. जो मैंने अभी आपको सीढ़ियाँ दिखाई थी, जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, मैंने एक चीज ये सोची कि मैं कितने लाइफ में अपने कितने लंबे टाइम तक, इंडिया में तो सीढ़ियाँ ऐसी ही है ना हैंड रेल होता है, ना कोई सपोर्ट के लिए आगे आता है, तो कितने लंबे टाइम तक ये चीज कर सकती हूँ. मैंने डिसाइड किया अब मैं अपने लिए अपना खुद का ऑफिस बनाऊंगी. वहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला अरेंजमेंट मुझे नहीं चाहिए. और जिस दिन मैंने वो डिसाइड किया कि बहुत हो गया, वहाँ पे मेरे को व्हील चेयर पे बिठा के तीसरे फ्लोर पे लेके जाते थे, कोई पियन लेके आता था, पियन ही ऊपर लेके जाता था, एंड ही वाज ओवरपावरिंग मी सेइंग दैट अभी आता हूँ मैम, अभी जाता हूँ मैम, अभी आऊंगा 10 मिनट बाद में. तो आई वाज डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन. अगर मुझे वहाँ पे एक लिफ्ट होता है या वो सिस्टम अरेंजमेंट मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देते वो लोग, तो शायद मैं मैनेज कर जाती, लेकिन वो नहीं था. एंड देन आई आस्क्ड माय दिस क्वेश्चन टू माय सेल्फ, हाउ लॉन्ग would you like to live in this humiliating environment? So I decided बहुत हो गया humiliation, अब अपने लिए करो. और जो और लोग हैं जो इस तरीके के arrangements चाहते हैं, adaptations चाहते हैं, वो चीजें हम अपने आप मेरे ऑफिस में तो वो मैं एटलीस्ट प्रोवाइड कर ही सकती हूँ, जो दूसरे चाहते हैं. तो इस तरीके से भी आई क्विट माय जॉब. Ma'am, yeah, of course, quitting the job was one thing, but I guess, what you are doing is remarkable. It's like something beyond someone's imagination, and probably you were born to inspire others and let the world know that, nothing actually is impossible. So thank you so very much for answering the question, and
sharing everything about your life and your journey. Hopefully, we'll get to meet you in person as well. Soon. And Sometime yeah, soon. sure. Soon, of course. Thank you so much. And with that, we come to an end to the session. I request all the students to join their classes after 15 minutes break. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. Have a great Bye-bye, day. ma'am. Take Thank care. you, ma'am. Thank you ma'am. once again. Thanks a lot.